Assalamu alaikum everyone, this is Abahat and welcome to my live session. So I'm just going to go on Facebook and see who's live with me at the moment, and it's nearly 8 o'clock. So let me just go and check who is live, and in the meantime, those of you who can guess what today's topic is about, you can just let me know in the inbox. Like, I know there are many kind of forces that are affecting our lives, whether they are our present lives or they are going to be our future lives. So I want you to tell me what can be those forces. So it's not difficult to guess. You can guess easily what kind of forces do I plan to talk about. And I hope my voice is clear and it's audible. I'll just take off the charging. So, okay, here it is. So now let me see. Let's see who's live. So I'm already live and there's someone telling me. Let's just see. Okay. So come on, anyone who wants to guess what today's topic is about, what are those forces which I intend to talk about? And what do you think can be those forces? It's not difficult to guess, it's very easy. Okay, so we have Jan Muhammad who is watching, and thank you for your compliments. I can see those emojis which are already over here. Okay, so Walaikum Assalam. I hope you're fine. And you know what? I was just planning to wait for some people, but I think I can start, and people are just going to join in as they come along. अच्छा, अब जो आज का टॉपिक है ना, अगर आप इस तरीके से सोचें या एनालाइज करें कि ज़िंदगी में वैसे तो कई फोर्सेस हैं, बट यहाँ पर जिन फोर्सेस की मैं बात कर रही हूँ, एक वो फोर्स है जो आपको पुल बैक करती है और दूसरी वो फोर्स है जो आपको फास्ट फॉरवर्ड मूव करने में मदद करती है. नाउ यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट टू डिस्कस what are those forces which I plan to talk about. So anyone who wants to guess anything, you can just let me know. Actually जो आज का टॉपिक है, it was जो मेरे माइंड में आया, I was reading a quote, and वो कोट पढ़ के जो है ना मेरे जहन में जो है ना, I was doing the analysis that how do things work. So now I have with me Zain Seti. Okay, thank you for watching. And then I have Zamir Rothani with me as well. And I guess I have Asif Shah who is watching, but he's not, down the screen. Alisha. Okay, yeah. So ये जो दो forces है ना, like जो quote में पढ़ी थी, basically the quote was by Roy T. Bennett, and it says, don't be pushed around by the fears in your mind, be led by the dreams in your heart. So this is the quote, and ये quote को जब मैंने पढ़ा तो there were so many things which I could link with real life, and I thought, why not discuss this with you. Okay, and who is this? Arfin Malik, thank you so much for joining and watching this session. Iqbal Zarkash, thank you so much, thanks for your compliment. So सबसे पहले जो चीज़ है ना, we need to understand how fear versus dreams. अब ये जो एक बात है जो कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपकी जो लाइफ है ना, उसमें कई फोर्सेस होती हैं जो कि एट वर्क होती हैं, और जो फियर है एंड जो ड्रीम है, बोथ ऑफ देम आर वेरी पावरफुल फोर्सेस. जो फियर्स हैं वो हमें प्रिवेंट करते हैं, या किसी को भी
नॉट आई वोंट से वी इंडिविजुअल्स, और कुछ को ज़्यादा करते हैं, कुछ को कम करते हैं, कुछ को करते ही नहीं है। सो जो फियर्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं इंसान को कुछ भी करने से, कि इंसान किसी भी चीज़ के बारे में कुछ सोचता है कि भाई मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, तो सबसे पहले क्या चीज़ है जो उसको रोकती है? इट्स द फियर। सिमिलरली जो है, कौन देन अगेन वी हैव अनदर पावर विच इज़ ड्रीम्स। ड्रीम्स क्या हैं? ड्रीम्स हमारे एस्पिरेशंस हैं, हमारे गोल्स हैं, हमारे इंस्पिरेशंस हैं, जो कि हमें पुश करती हैं टू अचीव समथिंग इन लाइफ, टू बिकम समथिंग। सो दीज टू अगर आप ये अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाओ ना, कि कौन सी फोर्स आपको कहाँ पर प्लेस करी है और कौन सी फोर्स क्या रोल आपकी लाइफ में प्ले करी है, तो यू आर गोइंग टू टेक लाइफ वेरी इजीली एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। बट देन अगेन अल्लाह ने हमें इस तरीके से बनाया है, वी कीप ऑन क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स, वी कीप ऑन लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स रादर देन द थिंग्स वी शुड फोकस ऑन, और इसी तरीके से हमारी लाइफ गुजर जाती है। एंड देन डेफिनेटली देयर कम्स अ टाइम इन आवर लाइफ जब हमको समझ आती है कि भाई हम पूरी ज़िंदगी गलत चीज़ों की तरफ फोकस करते रहे हैं या गलत चीज़ों के पीछे भागते रहे हैं। हमारी सही डायरेक्शन तो ये थी, एंड वी शुड बी इन दिस डायरेक्शन, वी शुड मूव इन दिस सिमत। सो दिस इज़ व्हाट आई प्लान टू डिस्कस। अच्छा जी, अलीशा, यू आर सेइंग simplicity is the best part of life. Yes, simplicity is the best part of life. It is the best actually. अच्छा, सो सबसे पहले अगर हम जो है फियर्स और ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं, तो आप ये चीज़ देखें कि लाइक बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं रियल लाइफ में जिनसे हम जो है ना अखज़ कर सकते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ कि आप किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं फियर्स और ड्रीम्स को। कि फ़र्ज़ करें कि कोई भी, हमें से कोई भी हो सकता है, वी वांट टू हैव अ बिजनेस एंड वी प्लान कि अच्छा भी हमारा जो है ना ऐसा बिजनेस होना चाहिए। फ़र्ज़ करें किसी के जहन में है कि भाई आई वांट टू बी आई वांट टू हैव अ बिजनेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब जो है दैट इज़ दिस इज़ अ ड्रीम, दिस इज़ एन एस्पिरेशन जो कि कोई भी बंदा अपने लिए प्लान करता है, या हम में से बहुत से लोगों की ड्रीम्स होंगी कि वी वांट टू बी दिस, वी वांट टू डू दिस। बट देन अगेन वो उन ड्रीम्स को जो है अचीव करने के लिए, ड्रीम्स ने तो अपना काम कर दिया कि उन्होंने आप ड्रीम्स ने आपको एक गोल दे दिया, आपको एक मिशन दे दिया कि भाई यू हैव टू डू दिस। बट देन उन ड्रीम्स के लिए जो है एक और जो फोर्स है विच इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर, दैट इज़ फियर। कि ड्रीम आपने कर ली कि यू वांट टू बी अ डिजिटल मार्केटर या यू वांट टू हैव एन एजेंसी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बट जो फियर है, फियर क्या है कि ये ना हो मैं नाकाम हो जाऊं, ये ना हो ना चले, ये ना हो क्लाइंट ना आए। तो वो जो ना का डर है, that is going to prevent you from doing something which you are meant to do. So you have to let go of those fears. You have to let go of many things in order to achieve your goal. So fear, दो आप उसको बिल्कुल ज़िंदगी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, you have to you know learn to ignore certain things when it comes to fears, और आपने अपने गोल्स परस्यू करने होते हैं। अच्छा, देन आपने जो है ये चीज़ देखनी है कि आप जो है यानी वंस यू रिकग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ फियर, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाउ यू आर एबल टू, या व्हाट आर यू गोइंग टू डू टू केटर एड, या इसको किस तरह जो है आप सब्सिडाइज कर सकते हैं, या ऐसे जो है आप काम कर सकते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में कम हो सके। तो उसमें जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, क्योंकि फियर को अपने जहन से निकालने के लिए यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड, यू हैव टू लेट गो ऑफ दीज थिंग्स जिसमें जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ जाता है। क्योंकि अगर जो है यू आर गोइंग टू सेल्फ डाउट योर सेल्फ, या यू आर गोइंग टू doubt your abilities, then you won't be able to move forward, and you are not going to be able to avoid the unforeseen circumstances जो आप तक आ सकते हैं। So you have to let go of fears. अब ये लेट गो फियर्स के मैं आपको इस ये एग्जांपल देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि जिस तरह कोई आर्टिस्ट है एंड द आर्टिस्ट इज़ रियली गुड, बट देन आर्टिस्ट का जो है इशू ये है कि उसके जहन में एक डर है।
डर ऑफ द थिंग कि भाई अगर मैंने अपना काम एग्जिबिट किया, लाइक किसी गैलरी में एग्जिबिट किया, तो रिजेक्ट ना हो जाए या लोग क्रिटिसाइज ना करें। नाउ दिस इज़ द फियर जो कि उस आर्टिस्ट को जो है रोक रहा है अपने जो है जो भी काम है उसकी एग्जिबिशन करने से। सो अगर आर्टिस्ट जो है अपने जहन से उस फियर को निकाल दे कि भाई ठीक है, काम है, हर एक अपना व्यू पॉइंट है, डाइवर्सिफाइड जो है ऑडियंसेस होते हैं, लोगों के जो है अपने जो है माइंडसेट होते हैं, किसी को आपका काम पसंद आएगा, किसी को आपका काम नहीं पसंद आएगा, but then you have to be open to positive criticism. So if the artist takes these things as पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, या अगर जो है वो सिर्फ अपने माइंड को इस लिहाज से ओपन कर देते हैं कि एवरी वन हैज़ देयर ओन व्यूज़ एंड दे आर रेडी टू वेलकम दोज क्रिटिसिज्म, या दे आर रेडी फॉर दैट रिजेक्शन, तो इससे जो है क्या होगा, इससे ये होगा कि वो जो इन्फ्लुएंस है फियर का वो आर्टिस्ट के माइंड पे नहीं होगा या किसी के माइंड पे नहीं होगा। सो दिस इज़ एन एग्जांपल विच आई गेव कि इस तरीके से भी होता है कि जब जो है यू आर गुड एट समथिंग, पर वो जो एक रिजेक्शन का डर होता है या एक जो है फियर होता है कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, नापसंदगी का जो एक डर होता है, तो जब आप उन डरों को अपने दिल से निकाल देंगे एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ इन योर एबिलिटीज़ एंड यू डोंट सेल्फ डाउट, तो आप जो है अच्छे तरीके से आगे मूव कर सकते हैं। इज़ देयर एनी कमेंट बाय एनीवन? ओके, सो नाउ आई कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, देन इसमें देखिए एक और चीज़ आ जाती है दैट इज़ रिलेटेड विद ड्रीम्स। हाउ कैन यू एम्पावर योर ड्रीम्स? हमारी जो ड्रीम्स हैं, एक्चुअली जो ड्रीम्स होती हैं ना, दे आर अ वे ऑफ गाइडिंग लाइट। जिस तरीके से अंधेरे में जो है आपने अक्सर देखा होगा जुगनू। अब जुगनू बज़ाहिर तो जो है छोटी सी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट्स एन इंसेक्ट, इट्स फ्लाइंग इंसेक्ट, बट ये है कि अल्लाह ने उसके जो बॉडी का पार्ट है, जो बल्ब टाइप जो है रोशन होता है, वो भी एक कुदरत है ना जो अल्लाह ने उसमें जो है डाली है। सो जिस तरीके से वो अंधेरे में जो है लोगों को रोशनी दिखाता है, इसी तरीके से जो हमारी ड्रीम्स हैं दे आर गाइडिंग लाइट फॉर अस। सो वो लोग जिनकी जो ड्रीम्स नहीं होती, सो उनकी लाइफ जो है बिल्कुल जो है अंधेरे की मानद होती है। दे आर जस्ट लाइक फ्लोटिंग स्टार्स विदाउट हैविंग एनी गाइडेंस। सो जो ड्रीम्स होती हैं दे गिव अस गाइडलाइंस, वो हमें जो है एक लाइट दिखाती हैं एंड वी हैव सो मच एस्पिरेशंस एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज ड्रीम्स। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी सारी ड्रीम्स जो है ट्रू हो सकती हैं, बट देन देर आर सर्टन ड्रीम्स जो ड्रीम्स ट्रू हो सकती हैं जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं। You can always work for those dreams, but then those dreams, there are certain dreams which are unattainable. वो क्यों unattainable है, there are certain reasons कि वो क्यों unattainable है, so we have to keep those dreams in mind as well. But then again, nothing is impossible. ये जो word है impossible, I am possible, you have to make it possible, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है जब हम ये सोचते हैं कि अनअटेनेबल ड्रीम्स हैं, अनअटेनेबल ड्रीम्स लोगों के लिए क्या होंगी। देर वॉज अ टाइम जब मून पे कदम रखना दैट वाज समथिंग अनअटेनेबल, बट देन ड्यू टू research, due to scientific discoveries, due to technology, it was made possible. So nothing is impossible. One can, अगर कोई चाहे तो one can make possible. But then again, for that you have to open your mind, you have to think out of the box, and then you have to utilize your mind to the fullest of potential. So it's, हम जो है जितना हमारा माइंड है या जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम उसका जो है मेरा नहीं ख्याल है 1/3 भी जो है यूज़ करते हैं, बहुत लेस यूज़ करते हैं हम। और वो जो लेस यूज़ करते हैं उसी में हमें लगता है कि भाई पूरी जो है ना दिमाग की जो है सारी एनर्जी लग गई है। सो वी नीड टू थिंक out of the box and start utilizing and maximizing our brain power more, ताकि हम इसको मज़ीद जो है ना यूटिलाइज कर सकें और प्रोडक्टिव बना सकें। अच्छा, सो एम्पावरिंग ड्रीम्स, दिस इज़ हाउ यू एम्पावर योर ड्रीम्स। एंड देन अगेन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है कि एक जो चीज़ मैं आपको बार बार कहती हूँ कि देखें, कोई भी काम करने के लिए यू हैव टू टेक एन एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपके काम नहीं होंगे। सो द मोमेंट यू डिसाइड कि यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू टेक एक्शन,
तो वो आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक आसान हो जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल आप इस चीज़ से समझें कि भाई एक इंसान है एंड दैट पर्सन इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स। अब उसमें जिस तरीके से हमारा मीडिया जा रहा है या जिस तरीके से लोगों की जो है सोच तब्दील हो रही है ड्यू टू सीइंग सो मच आर्टिफिशियलिटी ऑन द मीडिया ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो उससे जो है एवरी वन हैज़ स्टार्टेड डाउटिंग देमसेल्व्स। देन देर आर पीपल हु डू नॉट केयर कि भाई इट डजेंट मैटर टू दैम कि वो कैसे लग रहे हैं या कैसे नहीं लग रहे, एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी विद देमसेल्व्स। बट देन दोज हु आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर लुक्स, सो उसके लिए दे हैव टू डू सर्टन थिंग्स। अगर हेल्थ इज़ देयर इशू दे हैव टू वर्क ऑन देयर हेल्थ, इफ फिटनेस इज़ देयर इशू दे हैव टू वर्क ऑन देयर फिटनेस, if यानी ओवरऑल जो है if something else is their issue they have to do something about it. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए what do you need a plan of action, you need to take a step, you need to do something which involves action. So the first thing to make a difference is taking action. इसी तरीके से जो fear है, if you want to overcome fear you have to take an action. फियर जिस भी चीज़ से है यू हैव टू डू दैट थिंग ताकि आपका फियर निकले। अब ये जो है ना यानी बहुत लाइक व्हेन आई थिंक अबाउट माय चाइल्डहुड, तो देयर वर मेनी टाइम्स जब कोई चीज़ करने से जो है ना डर लगता था, बट देन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई वुड अपने आप को समझाती थी मैं कि नहीं इसमें डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, कि आई कैन डू इट। और उसमें जो है देन डिफरेंट एरियाज़ में आई वुड डू दोज थिंग्स, आई वुड डू द थिंग्स जो कि अब मैं सोचती हूँ कि भाई मुझे एज अ चाइल्ड जो है बड़ी बचत हो गई थी, नहीं करनी चाहिए थी। But then again that was the curiosity, and that's how children develop through trial and error and through making mistakes, through doing blunders. And क्योंकि अगर जो है बच्चे ब्लंडर्स नहीं करेंगे तो फिर वो बच्चे तो नहीं होंगे ना, फिर तो वो भी ग्रोन अप्स ही बन जाएंगे। सो ग्रोन अप्स आर मेंट टू गाइड चिल्ड्रन कि भाई आपने ये ब्लंडर नहीं करने। बट देन अगेन बच्चे कहीं ना कहीं ब्लंडर कर देते हैं। आई रिमेंबर कि आई वॉज अ वेरी sporty person, so I would participate in different games and do different things. I would love to play in the grounds, और जिस तरीके से लाइक हमारा जो टाइम था वी weren't concerned about कि भी भाई धूप में खेलेंगे तो रंग ख़राब हो जाएगा या जो है कोई चीज़ काट लेगी या अपने आप को जो है चोट लग जाएगी तो स्किन ख़राब हो जाएगी। जिस तरीके से आजकल जो है बच्चों के बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं उनके लिए कि हमारी स्किन ना ख़राब हो, हमारी शक्ल पे जो है ये दाना ना हो, ये स्पॉट ना हो। सो हमें ये जो है ना इश्यूज़ नहीं होते थे। सो आई रिमेंबर कि बैक व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज इन यूएस, तो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड थी और उसने मुझे जो है कहा कि लाइक देयर वाज अ मोटरसाइकिल स्टैंडिंग इन दी विसिनिटी जहाँ पर हम रहते थे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जो है ना इट वाज मोर ऑफ अ सिस्टम ऑफ अपार्टमेंट्स। अब्दुल सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। सो शी सेड कि भाई आप जो है ना ये मोटरसाइकिल का ना, दोज ऑफ यू हु नो हाउ मोटरसाइकिल वर्क्स और उसके जो कंबशन है वो कहाँ से होती है, तो वो जो उसका साइलेंसर होता है, दोज ऑफ यू आई नो आपने अब तक गैस कर लिया होगा कि वो जो साइलेंसर होता है जहाँ से वो धुआं निकलता है तो वो आमतौर पे काफ़ी गर्म होता है। अगर जो है ना यानी वो बंद हो और उसी वक्त ही बंद किया हो। बहरहाल उसने मुझे कहा कि भाई ये जो है ना साइलेंसर आप इसके जो है अगेंस्ट वो जो उसका सर्कल होता है उसके अगेंस्ट टांग अगर लगाओ या हाथ लगाओ तो बहुत ही जो है ना मज़ा आता है। सो आई वॉज अ चाइल्ड, आई डिड नॉट इवन ट्राई टू थिंक, क्योंकि मेरे ज़हनो गमान में भी नहीं था। आई एक्चुअली ट्रस्टेड हर एंड आई डिड नॉट नो कि भाई क्या होगा। सो आई सेड ओके, फर्स्टली आई डिड से कि भाई इट माइट बी हॉट एंड शी सेड नो नो इट्स टोटली कोल्ड एंड ये बड़ा मज़ा आता है। and she showed actually showed that scar on her elbow कि भाई मैंने भी एक दफ़ा ये किया था तो ये देखो ये मेरा कैसा स्कार बना है ना। स्कार भी नहीं उसने कहा, उसने कहा कैसा पैटर्न बना है। एंड आई सेड कि बाकी में ये तो बहुत कोई अच्छा पैटर्न बन जाएगा। खैर मैंने उसके अगेंस्ट जो है आई वाज
5 or 6 years old, और मैंने उसके साथ जो है ना सलेंसर के साथ अपनी टांग लगा दी। और वाकई में ऐसा मुझे मज़ा आया, ऐसा मज़ा आया कि बस। सो ये वो चीज़ें हैं, लाइक आई डिड समथिंग ट्रस्टिंग हर व्हाट शी वाज सेइंग, बट इट वाज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू, क्योंकि एज यू ग्रो अप तो आपको समझ आ जाती है कि भाई यू आर नॉट सपोज टू डू सर्टन थिंग्स। बट देन जब आप ग्रो अप कर रहे होते हैं ना, ये चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कि आप सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते हो या जस्ट फॉर एक्सप्लोरिंग सेंस करते हो। बट देन अगेन ऐसी आपको चीज़ें नहीं करनी होती कि एक्सप्लोरिंग के उसमें जो है ना आपके लिए जानलेवा हो। So this was one of the blunders I did, and then there was another blunder which I did. That was, I guess, I was a teen, और मैं क्योंकि आपको बता रही हूँ कि आई वॉज वेरी स्पोर्टी एंड आई वॉज इनटू प्लेइंग एंड दी स्टफ्स ना। तो आई यूज टू लाइक दी झूले जिनको आप कहते हैं, तो मुझे झूलों का बहुत शौक था। और कहीं पर भी जो है किसी पार्क में भी झूले होते थे तो मैं जो हूँ ना अपने पेरेंट्स को कहती थी मैंने झूलों पे जाना है, एंड आई रियली एंजॉयड दोज राइड्स। तो वो एक जो है मेरी गो राउंड था, वो जो सर्कल में चलता है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं। बहरहाल जी उसके ऊपर जो है चढ़ गए, और वो जो है जैसे जैसे जो है वो जा रहा था तेज़ी में जो है चक्कर वो कर रहा था, तो आई डोंट नो मेरे जहन में क्या आया, मेरे बस जहन में ये आया कि भाई ये कितनी तेज़ी से घूम रहा है, तो अगर जो है मैं इसमें से जो है टांग भाई निकालूं। आई डोंट नो व्हाई वाज आई सो मच फोकस अबाउट दीज थिंग्स कि भाई इसमें हाथ डाल के देखूं या टांग निकाल के देखूं कि भाई क्या होगा। बहरहाल जी वो मैंने जो है हल्की सी बस टांग निकाली थी, ज़्यादा नहीं निकाली थी, बट ये है कि एकदम वो स्ट्रक हुई, तो टांग तो मैंने अंदर कर ली, बट ये है कि फिर मुझे डांट बहुत ज़्यादा पड़ी थी। और फिर जाहिर है दर्द भी अच्छी खासी हुई थी, वो चूँकि लेग थी, टूटी तो नहीं वो, पर यह है कि मुझे बहुत सख्त डांट पड़ी थी, मेरा ख्याल है कुछ मार भी पड़ी होगी मुझे। और बस मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि भाई आप जो है इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आओगी, तो आप जो है। आई रिमेंबर मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डांटती थी जब मैं इस तरह की हरकतें करती थी ना, वो इतनी ज़्यादा जो है गुस्सा करती थी कि उस टाइम पे रोना आता था कि अम्मी एक तो दर्द भी हुई है, एक तो गलती भी की है, और ऊपर से आप डांटी जा रही हैं। बट नाउ व्हेन यू योरसेल्फ बिकम अ मदर, तो देन यू रिमेंबर कि भाई आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपसे कितना ही मोहब्बत करते हैं और वो आपको किस किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये जो बेवकूफ़ियाँ होती हैं एज चिल्ड्रन बच्चे बेवकूफ़ियाँ करते हैं, बट देन पेरेंट्स नीड टू हैव दैट टॉलरेंस कि वो उनकी बेवकूफ़ियाँ बर्दाश्त करें और उनको एडवाइस करें ड्यूली कि भाई बेटा इस तरह नहीं करना, क्योंकि ये आगे ज़िंदगी में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो अगेन वही बात है कि कुछ फियर्स होते हैं जिनको आपको ओवरकम करना होता है, बट देन अगेन कुछ फियर्स होते हैं जो कि अगर रहें तो बेहतर है, वरना जो है उसके रेपरकशंस जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा जी अलीशा, व्हाट आर यू सेइंग? यू आर सेइंग फॉर एग्जांपल if I want more good marks or percentage good in MBA or any other type of degree taking, so then we need to repeat, but we have many kinds of things, if not success or more bad, that's the क्या है, that's the afraid for doing this dreams, but if we take decision or step, that's risk, but we can take achieve this dream, so this called powerful forces for shapes our lives, that makes successful, that's make successful। yes Alicia, you are very much right कि भाई हमें ज़िंदगी में जो है ना we need to take steps, अगर हमारे कम मार्क्स आते हैं we need to work more to have a good grade, but then again nothing is end of the world अगर आपके एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, and if you don't want to repeat, क्योंकि there are certain things which happen for a reason, क्योंकि जो forces होती हैं they are shaping the way you are thinking, अगर fears भी होते हैं तो fears are making you more strong, they tune you in a way कि आपकी जो है डेस्टिनी जो चेंज होनी है, एंड इफ़ यू हैव टू चेंज योर पाथ, अगर किसी सब्जेक्ट में आपके जो है कम मार्क्स आ रहे हैं इवन इफ़ यू आर परसुइंग इट एज अ डिग्री, तो देन ऑलवेज think out of the box कि मे बी देयर इज़ अ रीज़न कि यू आर नॉट सपोज टू डू दिस डिग्री,
और हो सकता है कि उसी में कोई एक आपको जो है रीज़न मिल जाए या जस्टिफिकेशन मिल जाए कि यू हैव टू गो इनटू सम अदर पाथ। क्योंकि बाज़ लोग जो है ये चीज़ें जो है जब डिग्री स्टार्ट करते हैं तभी रियलाइज़ कर लेते हैं कि भाई ये डिग्री हमारे लिए नहीं है। बट देन अगेन देयर आर सम पीपल जो आधी ज़िंदगियाँ गुजारने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि भाई अब तक जो ज़िंदगी मैं जो जी रहा था या मैं जी रही थी, this was not the one I wanted for myself, so I want something else for myself. So you can always at that, even at that stage, you can pursue that thing. So it's not too late. हम जो ये कहते हैं कि जी उम्र गुजर गई तो ये नहीं कर सकते, अब उम्र गुजर गई अब ये नहीं कर सकते, अब शादी हो गई अब ये नहीं कर सकते, अब बच्चे हो गए ये नहीं कर सकते, लोग क्या खाएंगे फलाना ढमकाना, नो, give a dash to everything. As long as you want to do something for yourself, or you want to pursue something for yourself, or you want to make an impact in the lives of other people, so it's never too late to start anew and do something new. एंड नो मैटर ये फोर्सेस आप पे किस तरह जो है एक्ट कर रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप जो रिजर्व में आपके लिए है वो आपको मिलेगा, एंड इट डज नॉट मैटर वो कब मिलेगा. यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, यू जस्ट हैव टू बी डिटर्मिन्ड, एंड यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड ऑन अचीविंग योर गोल्स. ये जो एक चीज़ है ना, लाइक ड्रीम्स के बारे में अक्सर ये कहते हैं, या इवन एम्बिशंस के बारे में कहते हैं कि भाई दे नीड टाइम टू मैनिफेस्ट. और वो मैनिफेस्टेशन किस तरीके से होती है? वो इसी तरीके से होती है कि आप अपने गोल के पीछे लगे होते हैं कि जी मैंने ये गोल अचीव करना है. यू हैव टू फोकस ऑन दी लाइट. यू आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन कि आपके रास्ते में क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं. सो एज लॉन्ग एज यू हैव द विजन in front of you, you will be able to achieve that success. बट अगर जो है आपका विजन जो है ब्लरी होगा, या आप ये सोचेंगे भी रास्ते में बहुत ठोकरें मिलेंगी, बहुत जो है दिल टूटेंगे, बहुत जो है लोग जो है गंदे मिलेंगे, या आप जो है अचीव नहीं कर पाएंगे, सो वो जो फियर्स हैं यू हैव टू गो बियॉन्ड दोज फियर्स. या वो जो रिजेक्शंस हैं या वो जो डिजेक्शंस हैं, यू हैव टू गो बियॉन्ड देम. आपका जो फोकस है दैट शुड बी ऑन द लाइट, दैट शुड बी ऑन योर टारगेट, not on things associated along with it. अच्छा जी, Alicia, you're saying age doesn't matter to get education or taking knowledge. Yes, it does not matter. भाई आप जब से पैदा होते हैं ना, जब से आप जो है काके होते हैं, तब से आप जो है ना एजुकेट होना शुरू हो जाते हैं. एंड नॉट इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप जिन शिन होते हैं. इट्स जस्ट दैट कि भाई देखिए जब आप बच्चे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो पेरेंट्स होते हैं, दे आर टॉकिंग, या दे आर रिसाइटिंग डिफरेंट थिंग्स रिगार्डिंग कुरान. आप दुआएं वो पढ़े होते हैं आपके ऊपर, आपको सुना रहे होते हैं दुआएं, खुद भी पढ़ रहे होती हैं. देन दे आर रीडिंग डिफरेंट बुक्स, या और भी बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं. या इर्द गिर्द जो है अगर से टीवी चल रहा है, टीवी पे भी कोई अच्छी बातें चल रही होती हैं. सो यू आर पिकिंग सो मच out of your environment, your society, अपने पेरेंट्स से. एंड देन एज यू ग्रो एंड एज यू ग्रूम, अगेन आपको अपने environment में बहुत से लोग मिलते हैं who keep on talking. एंड दैट्स द रीज़न जब बच्चे जो है बोलने की स्टेज में आते हैं, दे आर ट्यून टू पिक अप सो मैनी थिंग्स. एंड बिफोर गोइंग टू स्कूल उनको अच्छी खासी चीज़ें आती हैं. जो ये बात की जाती है कि जी बच्चे की पहली गोद उसकी जो है माँ की लैप होती है, तो इट इज़ वेरी मच ट्रू. क्योंकि बच्चा जब जो है स्टार्ट करता है तब माँ बाप ही इर्द गिर्द होते हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, या अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसमें लोग होते हैं. सो बच्चा बहुत कुछ अपने घर से सीखता है, और फिर उसके बाद जो है स्कूल में लैंड करता है. एंड देन स्कूल वाले उसको जो है शेप करते हैं अपने तरीके से. बट देन देर आर सो मैनी थिंग्स स्टिल जो है द बच्चा हैज़ टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द फैमिली, ताकि जो सही नॉलेज है सीरत के हवाले से, करेक्टर के हवाले से, या डिफरेंट जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें काम आती हैं, या थिंग्स व्हाट मेक्स यू अ गुड पर्सन, सो दैट नॉलेज हैज़ टू बी इनकलकेटेड बाय द पेरेंट्स इनटू द चाइल्ड. क्योंकि स्कूल वाले तो जो है उसको सब्जेक्ट रिलेटेड ही जो है ट्रेन करेंगे ना, और वो भी जो है then it all depends on schools. I'm not going to say anything regarding schools. So every stage में जो है ना बच्चा is learning. So Alicia, you are very much right. There is no age for learning, and you just keep on taking knowledge. Or the best knowledge is
कि the best knowledge is the one which is good knowledge. Whatever good knowledge you have, you need to impart that knowledge. आपने अपना knowledge disperse करना है in the positive way, so it creates an impact, ताकि जो आपसे लोग सीख रहे हैं they pick up good things out of what you are teaching, rather than कि आप जो है कोई ऐसी बात कर दें जैसे वो जो है नेगेटिविटी जो है पिक कर लें, या ऐसी चीज़ें पिकअप कर लें जो कि विच लीड्स देम इनटू टॉक्सिक इन्वायरमेंट या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. सो यू आर नॉट गोइंग टू इम्पार्ट सच थिंग्स. ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक उस्ताद की होती है. एंड एज अ एजुकेशनिस्ट एंड एज अ टीचर, you have to be very responsible regarding dissemination of knowledge, whatever you're disseminating. जान मोहम्मद, आप तो no, I was here around 7:59. I think you are late, but not for 20 minutes. It's already 8:30. I guess half an hour हो गया है. अच्छा, so this is regarding uh, how to take action despite fear. अच्छा, then again जो है इसमें एक और जो बात आ जाती है, that is are you saying something? No, I guess I have covered it. Okay, you are saying mostly famous books in writing. We need to educate for cradle to grave. Yes, we need to educate ourselves from cradle to grave. जब से हम पैदा होते हैं हम तब से नॉलेज लेना शुरू करते हैं, और जब तक हम कब्र में जाते हैं तब तक भी हम नॉलेज लेते रहते हैं. ये अलग बात है कि बाय द टाइम यू गो इन ग्रेव, तो आपकी नॉलेज की जो नोयत होती है या सब्जेक्ट्स की जो नोयत होती है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी होती है. काफ़ी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में चेंज हो चुकी होती हैं, आप काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हो. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उस टाइम पे किस किस्म का नॉलेज जो है ले रहे हो. बट ये है कि देर इज़ नॉट एन एंड, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्रीट योर सेल्फ एज अ लर्नर, as a student. Don't ever think you are a professional, you're an expert in that field. Because you keep on learning, and the more you learn, the more you'll gain more insight about the world. और उतनी ज़्यादा ही आप जो है you'll be wise, and you'll be in that position to deliver something good and make a positive impact. सो अगेन इसमें जो है जो चीज़ इसमें मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि जैसे जैसे आप ग्रूम करते हैं, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, तो ग्रोथ को भी एम्ब्रेस करें, रिजिलियंस को भी एम्ब्रेस करें, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. हमने जो है लाइफ में हमारे साथ सब चीज़ें चल रही हैं, हमारे साथ यूथ भी चल रही है, हमारे साथ बुढ़ापा भी चल रहा है, हमारे साथ और भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं. तो हमने इनको प्रेस करना है, इनको एम्ब्रेस करना है, क्योंकि इंसान हमेशा एक तरह का नहीं रहता. जिस तरह हम बचपन में होते हैं हम उस तरह के जवानी में नहीं होते, जिस तरह हम जवानी में होते हैं हम उस तरह बुढ़ापे में नहीं होते. सो एवरीथिंग इज शेपिंग आवर वर्ल्ड, शेपिंग आवर नॉलेज, एंड शेपिंग us as well. So we need to praise these things, we need to embrace growth, we need to embrace resilience, and we need to keep on doing good for the betterment of our community, or for the betterment of people. So this is and then I guess, yes, that's all what I wanted to share. और now I'm just going to go to my Facebook and see अगर आपके जो है कोई concerns हैं, या आज का जो topic है it was not clear to you, या if it was clear to you, you can always show me through your emojis. Yes, I can see some emojis coming up. Thank you so much. And you know what? Today I can see two people at the top of my screen. So I'm just going to invite you on camera. And if you want to come on camera, well and good. And if you don't want to come on camera, it's totally up to you. तो मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है. And guess what? एक ने तो अपना कैमरा ही बंद कर दिया और वो ऑफलाइन चले गए कि भाई मुझे ना कह दे आने को. अच्छा, अब्दुल सलाम, मैं आपको ऑनलाइन ले लेती हूँ फिर. नॉट अनलेस आपका भी कैमरा डिक्लाइन है. Okay, thank you so much for your compliment. And I can see someone else, but उनका जो है कैमरा नहीं शो हो रहा.
Alicia, do you want to come? Okay, so Abdul Salam is joining. अगर आप फेस रिवील नहीं करना तो इट्स ओके, आप कैमरा कवर कर दें और जस्ट आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे आवाज आ रही है, आप बोलें। कोई बात नहीं, आप कैमरा बेशक कवर कर लें, आप बोलना चाहते हैं सिर्फ बोल लें। I guess there was some kind of transmission issue, so I cannot see him, and I guess the overall net has been disrupted. Okay, so no issues. Okay, so I can see someone else. I can see Alicia. I can, try to bring you on camera and let's see. Abdul Islam, it's okay. It's okay. I have added someone else on camera. It's okay अगर आपके वहाँ पर भी net issues आ रहे हैं. So I am adding Alicia and let's see what he has, and then I can see someone else on screen, so I can just bring them on camera as well. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अलीशा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। जी जी, मैं बाकी सब आपके ठीक ठाक। फॉलोअर्स सब ठीक है? जी क्योंकि ये भी आप, बाकी मैंने क्या आपके फॉलोअर्स वगैरह सब लिसनर्स सब ठीक है? जी जी, क्योंकि ये मुझे भी तो एक ठीक ही फैमिली लग है ना रहे हैं। आपकी, ये भी तो आपकी फैमिली है ना। जी सॉरी। जी बिल्कुल। तो मैंने जी मैंने डिस्कस करना था, जैसे मैंने अभी उसमें भी बात की है, कमेंट में भी। तो बात ये थी कि जब हम कोई चीज़ करने की सोचते हैं तो ज़ाहिर उसके अंदर हमें बहुत से उसमें डर या मतलब इस तरह के मसाइल दरपेश होते हैं जिनसे हमें खौफ आता है कि हम कहीं नाकाम ना हो जाए या मतलब अनसक्सेसफुल ना हो जाए। तो कुछ बिल्कुल मिशन जो है ना इनकम्प्लीट रह जाते हैं इसी वजह से। लेकिन जब हम कोई सही। रिस्क लेते हैं, कोई स्टेप लेते हैं, कुछ ठान लेते हैं करने की, तो देन हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैंने शायद आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि मेरी जो नाइफ थी, ठीक है, उन्होंने एफएससी के अंदर, एफएससी के एग्जाम के अंदर उन्होंने रिपीट किया था, लेकिन उन्होंने स्टेप लिया, मतलब उनके मदर फादर की बहुत सपोर्ट थी, उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने जो है ना बिल्कुल वो एग्जाम दिया और उसके बाद फिर रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब एमबीबीएस कर रही है, मेडिकल। माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ जी, वो बहुत जी जी जी, जी मुझे आवाज आ रही है। जी जी। आप बिल्कुल सही कह तो रहे हैं, और बहुत जरूरी होता है क्योंकि रिस्क फियर्स जो है लेना आपको, पड़ता है। जी जी, फियर्स आपको पुल बैक करते हैं, तो आपने उन फियर्स को ही ओवरकम करना होता है, और वंस यू आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, तो फिर आपकी मंजिलें आसान हो जाती हैं। तो वो आपने नहीं घबराना होता कि बिल्कुल भाई ऐसे। फियर आ गया है तो फिर आपने जो और है उसे ओवरकम नहीं करना। और दूसरा, अभी आपने टॉपिक में बात की थी लापरवाही की, जैसे हम बच्चों की केयर नहीं करते, ठीक है, उनका नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहे हैं। हम्म ऐसे ही कल नाइट में मैंने एक वीडियो देखी, 3-4 बच्चे अपने घर से बाहर खड़े होते हैं, तो एक ट्रॉली गुजरती है, ट्रैक्टर ट्रॉली ना, तो ठीक। वो जगह तंग होती है, तो वो एक बच्चा उसके ऊपर चढ़ने लगता है, हम्म तो वो उसका हाथ स्लिप होता है, वो उस टायर के नीचे आ जाता है और उसी मौके पे उस बच्चे की डेथ हो जाती है। अब इसके ऊपर जो है वो गलती या कसूर जो है वो ड्राइवर का नहीं है, ड्राइवर तो अपना सीधा जा रहा है। तो इसमें कसूर हम्म जो है वो उनके पेरेंट्स का है, जिन्होंने केयर नहीं की, जिन्होंने देखा नहीं कि हमारा बच्चा कहाँ है, रात के टाइम बाहर क्या कर रहा है।
या मतलब लुक आफ्टर नहीं किया तो उसका फिर वो नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो हर इंसानी जान की बहुत कीमत होती है। अच्छा, तो मैं ये पता चीज है है, इस ये लापरवाही होती है जो हम्म, फिर। मैं एक्चुअली आपकी आधी जी बात जी। से एग्री करूंगी, आधी से नहीं करूंगी। उसकी वजह ये है कि देखिए, जहाँ पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एट द सेम टाइम रोड पे कोई भी गाड़ी हो या कोई भी चीज हो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आप ये देखें कि हर जगह के जो है ना एक सर्टेन जो रिक्वायरमेंट होती है। मसलन अगर कोई तंग गली है, उस तंग गली में जो है आप 20 की स्पीड पे भी नहीं जा सकते, और प्लस आप उधर से कोई ऐसा व्हीकल भी नहीं निकाल सकते कि जो बाकी इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके लिए रास्ता तंग करे। तो बीइंग अ हम्म, ड्राइवर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है किस गली में जा रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द अगर उस गली में जो है घर हैं, बच्चे खेलते हैं, क्योंकि गलियां तो जो है देर वेरी कॉमन कि उधर जो है बच्चे खेलेंगे। तो दिस इज द बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑफ द ड्राइवर एज वेल। पेरेंट्स की तो है ही है, बट देन अगेन मैं देखूंगा अगर मेरे जब पास। हाँ, जी मेरे। जी जी, आपकी बात मैं काटता हूँ। मैं चेक करूंगा अगर मेरे पास वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है तो मैं हम्म शेयर करूंगा। आप डिसीजन लीजिएगा। डिसाइड आपने करना है कि मिस्टेक इसमें किसका है, क्योंकि वो बहुत स्लो जा रहा था। हम्म जो मैंने हम्म, ऑब्जर्व किया है, जो मैंने मतलब जज किया है, देखा है, बिल्कुल स्लो जा रहा सही। था। एक स्पीड में होता है ना तो वो एकदम से चला जाता है, बिल्कुल स्लोली जैसे मतलब सिस्टम होता है, वैसे वो जा रहा था। एक साइड से, एक होता है ना पीछे हम्म बंदा आता है तो नजर आता है एक साइड पे, क्योंकि हम्म उसका गाड़ी वाला सिस्टम नहीं होता है कि दोनों तरफ जो है ना वो उनके जो है ना शीशे नहीं लगे होते, इसलिए उनको नहीं पता चलता। एक ही होता है सेंटर के अंदर बस। ठीक है। तो ये जिन हो गया। उसके अलावा यहाँ हम्म अब्रॉड में देखें या और भी हमारे उसके अंदर सिटी में देखें, पाकिस्तान के सिटी में, यहाँ अब्रॉड में कुछ ऐसी हम्म शाखाएं हैं, ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे ऊंची गाड़ियां हो गई या मतलब बड़े जो हो गए ट्रक्स हो गए या छोटी गाड़ियां हैं, उनका जो है ना क्लियरली लिखा गया है कि यहाँ पे ये अलाउ नहीं है। बैन है, ठीक है। फाइन होगा, बैन होगा, इस तरह करके ना। ये चीज वहाँ पे हम्म, भी होनी चाहिए बिल्कुल। हमारे कंट्रीज में। देखिए, और से जो है ना ब्लाइंड मिरर्स लगे होते हैं। अगर आपने जो है मरी का कभी जो है रुख किया हो, तो मरी में जो है चूंकि वो ज्यादा चक्कर हैं, तो उन्होंने जहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट्स है उधर उन्होंने मिरर्स लगाए हुए हैं, ताकि जब गाड़ियां गुजरे तो उनको एग्जैक्टली पता हो कि भाई उनके जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो क्लियर है। तो सिमिलरली जो है ये जो है ना, ये सारी चीजें जो आर्किटेक्चरल डिजाइन में आती हैं, या जब आप जो है किसी भी जो है सिटी को जो है डिजाइन कर रहे होते हैं, दैट इज इफ इट्स मैनली कंस्ट्रक्टेड, तो आपने ये चीजें देखनी होती हैं। जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। मैं आपको ये चीजें इसलिए कहती हूँ क्योंकि बीइंग अ ड्राइवर, तो मैं मेरी तो पहली प्रायोरिटी ये होती है कि भाई अगर जो है एक्सेस नहीं भी है, या अगर जो है गली तंग भी है, तो एज अ ड्राइवर आई हैव टू बी अवेयर कि भाई ये गली, इसमें जो है घर बने हुए हैं और बच्चे जो है दे आर प्रोन टू भागते हुए आपकी गाड़ियों के आगे से गुजर जाते हैं। तो आपने बीइंग अ ड्राइवर इन सब चीजों का ख्याल रखना होता है, चाहे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो ना हो, स्टिल आपने इन चीजों को जहन में रखना होता है। अब ये देखेंगे, इवन आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपका जो रियर व्यू मिरर है उसमें चीजें क्लियर नहीं होती, बट एज अ ड्राइवर हमें ये सिखाया जाता है कि आपने पूरी गर्दन मोड़ के जो है ना पीछे देखना है कि पीछे कुछ है तो नहीं, या इर्द गिर्द कुछ है तो नहीं। तो ये चीजें जो है ना डिफॉल्ट आप में आ जाती हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। पर यस, आई एग्री, आई फुली एग्री। क्योंकि मैं खुद ड्राइव करता था तो मैं टाइम मुझे ऐसा रास्ता कुछ नजर आता था या मतलब इस तरह कुछ तंग रास्ता होता था, तो मैं वहां जो है खुद उतर गाड़ी से उतर के खुद जाके दोनों साइडें मतलब कैसे गुजर जाएगी, ये मतलब प्रॉब्लम होगा, तो वो सारा चेक एंड बैलेंस करने के बाद फिर जो है मैं उस तरफ मूव करता। तो ये चीज होनी बहुत चाहिए। अगर जरूरी ये सब है। सब लोग इस तरह सोचने लग जाए तो बड़े नुकसान से बच जाए। जैसे कि मतलब मैंने। जी बिल्कुल, वही बात है ना कि अगर आप जो है चीजों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि भाई आपका ये एक्शन जो आप कर रहे हो उसका क्या रिएक्शन होगा, तो उससे जो है बहुत कुछ बच जाएगा, बहुत कुछ, बहुत ज्यादा लोग बच जाएंगे इनफैक्ट। ओके, सो
now I can see someone else, and let's see if I can bring this facial Vietnamese person on camera. और पता नहीं कौन है, but let's see. Okay, so he declined. It's okay. Sajid Mia, thank you so much for joining and watching this session. Okay, so guys, this was all regarding this session, and there's one more. I'm Jan Mohammed. I'm just going to bring him on camera. Let's see. अगर ये on camera आ जाए. Okay, I guess it's declined. Okay, guys, no issues. I think आज के दिन के लिए जो है, I have taken enough people on camera, and if there's someone else who wants to come on camera, तो आप मुझे बता दें. I can take you on camera. ओके, ठीक है. नहीं नहीं, ना फिक्र करें, मैं नहीं किसी को कैमरे पे ले रही. क्यों आप जो है डर के हमारे जो है ना स्क्रीन से ऑफ चले जाते हैं? मैं नहीं दे रही आपको. बस ठीक है जी. चलें, आप जो है सब अपनी जो है अपना पैकअप करें. इट्स ऑलरेडी 8:40 ओवर हियर. सो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी सेम टाइम एट टुमारो इज फ्राइडे. वाह, ओके, बस ठीक है. कल फ्राइडे है तो मैं वैसे खुश हो गई. और सिग्नल इश्यूज, Alisha, it's okay, it's fine, no issues. तो देन फ्राइडे के बाद जो है इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी आप लोगों से. और कल के लिए स्टिल आई विल कम लाइव टुमारो. No, no, Abdul Salam, you can wind up as well, and you can go and study. And I'll just pack up, and I'll go and offer my Isha as well. So see you people tomorrow, and thank you for your emojis. I can see your emojis और बड़ी स्पीडों पे आ रही हैं. और if there's any topic which you want me to discuss tomorrow, I can discuss it in my live session, and I'll see if I can do vlogging in the morning. Otherwise, I'll just share some post tomorrow. So bye bye and take care. Allah Hafiz.